الحمدللہ مفتاح لذکرہ عباداللہ عزتہ بعظمتہ وجودہ الذی خلق الخلائق الجن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاص الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول صلوات پڑھ دیجیے عزیزان محترم، میں تو چاند رات سے جب سے یہاں آیا ہوں میں نے تو کہا لوگوں کو کہ آپ میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو آج اتفاق سے کوئی آیا تو نہیں، جب سے میں آیا ہوں کوئی بھی نہیں آیا۔ حمدانی صاحب میرے پاس تشریف لائے، مخدوم صاحب اب پتہ نہیں یہ خود آئے یا ان کو کسی نے بھیجا۔ انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ قبلہ جب تک یہاں ہیں فضائل آپ نے بہت پڑھ لیا، آپ امام زمانہ پہ کچھ روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا، اچھی بات ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد، جو محمد آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت بھی حاصل نہیں کی گویا وہ جہالت کی موت مر جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور توجہ، کوئی بولے نہ بولے، کسی کو کہوں گا نہیں میں، حمدانی صاحب آپ پہ واجب نہیں بلکہ واجب ہو چکا ہے میرے ساتھ بولنا، کیونکہ یہ امام جو میں نے آپ کو بتانا ہے یہ مولوی کا امام نہیں ہے، جا رہی ہے، یہ امام ہے بقیت اللہ۔ توجہ کیجئے گا مخدوم صاحب۔ اور ویسے بھی مجھے پیر صاحب کے وسیلے سے مخدوم صاحب کی طرف سے اجازت بھی مل چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج تو پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ سورہ حجرات، بات یہ ہے سورہ حجرات پہلی آیت ہے، ترجمہ ضائع ہو گیا بڑا دکھ ہوگا اور دل خون کے آنسو روئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والوں، اے دعوے داران ایمان، اے ایمان کا تدبر کرنے والوں، اے ایمان کا تکبر رکھنے والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اے ایمان والوں خبردار، نہ میرے رسول کے آگے کھڑے ہونا اور نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا۔ کیا آیت ضائع کر دی آپ نے؟ حضور یہ تو جاہل مطلق بھی جانتا ہے کہ رسول کے آگے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جی بولیے گا، کیونکہ رسول بظاہر ایک وجود رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا۔ بابا وہ وجود تو میری جان رکھتا نہیں، جسم رکھتا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں مومن ہو کے بھی ہم کافر ہیں کہ اللہ کو پیٹ کیے کھڑے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے بلا فصل، بلا تفصیل، بلا تمثیل، بلا قیاس، بلا رائے، بلا تتمہ، بلا اتباع اگر حکم پہنچا دیا ہے تو پھر امام زمانہ سننا آپ پہ اوجب ہے۔ تفسیر صافی سے لے کے تفسیر کافی تک اہل سنت سے میری بات نہیں ہے، صرف یہ شیعوں کی بات ہے، اور یہ میرا انہیں سے خطاب ہے، ان کو فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور سے سنیے گا، لفظ لفظ کو ضائع نہیں کیجیے گا، حرف حرف کو نقش قلب پہ لکھ لیجیے گا، اور آپ کی دعاؤں سے میرا بھائی بھی صحتیاب ہو چکا ہے، اور آپ کو میرے انداز سے پتہ چل ہی چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر صافی سے لے کے تفسیر کافی تک
असूल काफी से लेके फरुए काफी तक, तवज्जो है या नहीं है? तौकियात इमाम जमाना से लेके हुसैन बिन रू तक, अली से लेके इमाम हसन अस्करी तक 52,000 फरामीन दिखाने को मैं तैयार हूं। समझो कीजिएगा निगाह मोहतरम, हम मुस्तईद मुकद्दस और मराज उज़ाम की किताब दिखाने को तैयार। फ़अख़रुजहु ईसा जब नमाज़, ईसा जब ज़हूर करेंगे, लतुक़द्दिमुहु बैन यदी सलातिहु वल इमामुल ज़माना, इमाम ज़माना आदम से लेकर मोहम्मद और मोहम्मद से लेकर अली, अली से लेकर हसन अस्करी तक को नमाज पढ़ाएंगे। इमाम ज़माना आगे खड़े होंगे, सब पीछे होंगे। अकामत के लिए ईसा खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर की अकामत कहेंगे। उस वक्त इमाम ज़माना कहेंगे या मरियम तुक़द्दिमु सलाता, ऐ ईसा नमाज पढ़ाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ। उस वक्त कहेगा काला काला रब्बे जलीला ला तुक़द्दिमु बैन यदी अल्लाह व रसूल, मैं आपके आगे कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अल्लाह ने मना किया है, खुदा के आगे खड़े नहीं होना। बोलिए 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 बोलिए। तो जो है या नहीं है नाना हजूर आखिरी आदमी तक जुमला वसूल कीजिएगा। बातें दो हैं, या तो ईसा नुसैरी है, या तो ईसा नुसैरी है कि इमाम ज़माना को खुदा मान रहा है, या ईसा जानता है कि हुज्जत को पीट करना गोया खुदा को पीट करना है। दो बातें हैं ना, या तो ईसा जानता है कि ईसा खुदा है, इमाम ज़माना खुदा है, या ईसा जानता है कि हुज्जत को पीट करना। क्या करूं मैं? अंदाज़ी साहब, या तो ईसा के दो अकायद में से आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कोई सा अकीदा ले ले, मगर दोनों अकीदों में से किसी को यह शक नहीं होना चाहिए कि अकीदा ईसा क्या है। हाँ, ये तयशुदा बात है कि छोटे दिनों के लिए कि ईसा जानता है कि हुज्जत को पीट करना, अल्लाह को पीट करना। हाय हाय, क्या करूं दीदार मोहतरम, तवज्जो है या नहीं है? ना अभी नहीं, मैं और समझाता चलूं। इमाम ज़माना का नाम क्या है? कोई नाम लेना जायज नहीं है, इमाम ज़माना का नाम नहीं ले सकते, ममनू है। मगर कहते हैं मीम है मीम दाल, ठके अल्फाजात में ये भी नाम है, मगर इनका लक़ब है बक़ियतुल्लाह। बस अब बक़ियतुल्लाह आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये मुझे नहीं पता, नहीं पहुंचा तो मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बक़ियतुल्लाह किसे कहते हैं? कभी आप कपड़े की दुकान पे जाएं, मिसाल दे रहा हूं, बक़ियतुल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह का बकाया, अल्लाह का बाकी। क्या करूं, तवज्जो नहीं करती दान मोहतरम। जब आप किसी कपड़े की दुकान पे जाएं, कहें किबला अब मालिक की दुकान बैठा है, उसने 2-3 कारीगर रखे हैं, आप उसे क्या किबला कोई महंगा कपड़ा दिखाइए, वो मालिक अपने नौकर को हुक्म देगा फुला सूट लेके आओ, कहेगा किबला ये 2000 रुपये मीटर है, आप कहेंगे नहीं इससे भी अच्छा दिखाओ, वो फिर अपने नौकर को हुक्म देगा फुलानी जगह पे वो फुला थान पड़ा है उसे लेके आओ, कहेगा किबला ये 4000 रुपये मीटर है, फिर आप कहेंगे इससे भी अच्छा दिखाएं, वो अपने नौकर को कहेगा फुला जगह पे जाओ, वहां पे वो महंगा तान पड़ा है लेके आओ, किबला ये 10,000 रुपये मीटर है, आपके हजूर आपकी दुकान का जो महंगा कपड़ा है वो दिखाएं, अब मालिक खुद खड़ा होगा, तवज्जो कीजिएगा, और किसी कोने खांचे से वो निकाल के लाएगा, कहेगा किबला ये 50,000 रुपये मीटर है, इससे महंगा मेरी दुकान में, अरबी में से बकिया कहते हैं, अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, अरबी में से बकिया कहते हैं। अल्लाह आदम को भेजे, मोहम्मद को भेजे,
अली से लेके हसन अस्करी को भेज के, किसी को बकिया नहीं कहता, महदी को भेज के कहता है उम्मत अब इसके अलावा मेरे पास कोई हुज्जत नहीं है, ये मेरी हुज्जत खास है। अब इमाम ज़माना अंबिया को जो नमाज पढ़ाएंगे उसका तशहुद का होगा। इमाम ज़माना तशहुद पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदय्य व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व औलादहुल मासूमीन अला हुज्जतुल कायमा। अरे जब कायनात की तेरी आखिरी हुज्जत तशहुद नबी का नाम लेती है, तू नाम ले तो तेरी नमाज ही बातिल हो जाती है। जो है अब मुझे इजाजत है कि थोड़ा फलसफा भी हो जाए। मैं अपने मौजू पे आता हूँ, तो जो है अब आप खुश हो गए, आपको पता चल गया कि मैंने क्या पढ़ना है। हुज्जत है आखिरी। अच्छा मेरे साथ बोलते रहिएगा, तवज्जो किबला कीजिएगा। ये जो इमाम ने आना है, लोग समझते हैं कि ये कोई आम हस्ती है। क्या जो शाय को छुपा के रखा होगा उसने, ठीक है ना। ये जो अभी गैबत चल रही है इसे कहते हैं आलम फुतरुत, फे ते रे ते, मगर इस पे मुझे बहस नहीं, वो मुश्किल फलसफा हो जाएगा। मासूम क्या कहते हैं, अल हुज्जतुल मारिफतिही व हुज्जतुल फुतरा व फुतरतुल कायम ब हुज्जतिही व मुबालगतन हुज्जतुल कायम व साबिकतुल हुज्जा हुवल मारिफतुल माज़ियतन मुस्तक़बिल हुवल हुज्जतिही फिल इंतमाउ समावात वल अर्द। परेशान तो नहीं हो गए? मासूम कहते हैं नूह को उसने समझा है जिसे आदम की मारिफत थी। पूरी मजलिस पड़ गया और आपने ज़ाया कर दिया, खुदा की कसम सारी बात ही आपने, मखदूम साहब सारी बात मेरे मजमे ने ज़ाया कर दी है। मासूम फरमाते हैं नूह को उसने समझा है जिसे आदम की मारिफत थी। ना, ऐसा नहीं हो सकता। और इब्राहिम को उसी ने समझा है जिसे आदम और नूह की मार्फत थी। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं कर रहे। और मूसा को उसी ने समझा है जिसे साबका नबियों की मार्फत थी। ईसा को वही समझता है जिसे साबका नबियों की मार्फत है। मोहम्मद को उसी ने समझा है जिसे 1,01,24,000 नबियों की मार्फत थी। ये छोटी बात नहीं, तभी तो कहा जिसने ईसा को देखना बूजर को देख ले। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं कर रहे। जिसने मूसा को देखना उसे मिकदार को देख ले। और अली को वही मानेगा जिसने मोहम्मद को समझा है। तवज्जो कीजिएगा, ये मासूम के कौल की मैं इशारा बयान कर रहा हूं। हसन को वही समझेगा जिसे आदम से मोहम्मद और मोहम्मद से अली समझ आ गया। या मार्फत है जुज़वी या कुल्ली, कैसी है? मेरे लफ्जों के लिए जाइएगा, ठीक है ना, लफ्जों की मुझे माफी दीजिएगा। हुसैन को वही समझेगा जिसे आदम से मोहम्मद, अली से हसन की मार्फत है। क्या हो गया, परेशान हो गए? मौजू छोड़ दिया जाए? क्यों मखदूम साहब, मुश्किल हो गया ना मौजू? नहीं, मौजू मुश्किल हो गया, ठीक है ना। सज्जाद को वही समझेगा जिसे हुसैन समझ आ गया। अब ये जो इमाम है ना,
اس کو وہ سمجھے گا جسے کم از کم 11 سمجھ آ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ کی معرفت بہت ہے نا. حضور توجہ کیجیے گا. میں نے تو ویسے ہمدانی صاحب کو کہہ دیتا آج کے مجلس میں داد نہیں لوں گا. آج صرف آپ سنیں, توجہ کیجیے گا. آپ صرف آج سنیں, آج مجھے داد نہیں دیں, مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. آج آپ صرف سنیں. جب موسیٰ نہیں آئے تھے فرعون کا غلبہ تھا, فرعون کا غلبہ تھا, تو تمام بنی اسرائیل 40 سال پہاڑوں پہ جا کے موسیٰ کو آواز دیتی رہی کہ موسیٰ مدد کو آئیے. انتظار کرتے رہے موسیٰ کا. ایسے ہی ہے نا کہ بلا موسیٰ آئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو مارا. جو لوگ موسیٰ کو بلا رہے تھے انہوں نے موسیٰ کے قتل کا فتویٰ بھی دیا. اب امام تقی کیا کہتے ہو بے انصار المنتظرین بے منتظرین المنافقین الاکثریت ہی و منافقین الغاصبیت ہی و علماء الغاصبیت ہی. انتظار کرنا جو استغاثہ ہے دو صورتیں ہیں, یا آواز ہے یا تحریر ہے. تحریری استغاثہ تاریخ میں ایک آیا ہے کوفہ سے حسین کو, مولا غسنی. توجہ نہیں کرتے, فلسفہ ہے, توجہ کیجئے گا. مولا ہماری مدد کو آئیے. جن لوگوں نے خط بھیجے تھے, جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی امام کو بلانے کی, مولا نہیں آئے, مولا نے مسلم کو بھیجا. انہی خط لکھنے والوں نے مسلم کو مار دیا. میں تو بہت کڑوا سچ بول رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. اب امام زمانہ ہے غائب. امام حسن عسکری سے پوچھا گیا, بولا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ کہو العلماء یفتبتہی بقتل الامام. دیکھو جب حجت آئے گی اکثریت علماء کی ہی حجت کے قتل کا فتویٰ دے گی. دے گی نا. کیا کہیں گے؟ مولا جائیں ہم ہیں. یعنی کیا جملے ہیں؟ مولا جائیں. یہ مولا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے. یہ علماء کوئی غیر نہیں ہوں گے, یہ علماء اپنے ہوں گے. یہ اپنے علماء ہوں گے جو امام زمانہ کے قتل کا فتویٰ دیں گے. امام زمانہ آتے ہی 3 چیزوں کو ختم کریں گے. آتے ہی دیکھیں, معرفت پہ بھی بات نہیں ہو رہی, ابھی تو امام زمانہ کی حکومت پہ بات ہو رہی ہے. امام زمانہ آئے گے, یہ بات آپ کو بری تو نہیں لگ رہی نا. امام زمانہ آتے ہی پہلا کام کیا کریں گے؟ یہ جو مساجد ہیں اس میں ہم ایک بناتے ہیں محراب. یوں ہمدانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جو غلط کہہ رہا ہوں؟ امام زمانہ آتے ہی محراب بنائیں گے اور کہیں گے اس میں جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں سب منہ پہ ماری جائیں گی, کیونکہ رسول کی مسجد میں محراب نہیں ہوتا. اللہ کیا کروں, توجہ نہیں کر رہے. امام زمانے کیا کریں گے؟ محراب, مینار. موضوع بدل دیں یا رہنے دیں؟ پھر کہیں گے کہ ان کو علماء کو بلاؤ جنہوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں. توجہ کیجیے گا قبلہ, توجہ کیجیے گا. بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, میں یہ کہتا ہوں. ان کو بلایا جائے گا اور تاریخ ہے, حدیث نہیں ہے. فرامین عامہ ہے, حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے کیونکہ یہ امام ضعیف نہیں ہو سکتی. کم میں ایک نہر ہے, وہ مولا کہتے جب سوکھے گی میں ظہور کروں گا. اس نہر میں علماء کا خون بہایا جائے گا. 70,000 علماء, 70 عربی کا آخری لفظ سے آگے گنتی نہیں ہے. امام 70,000 علماء کو قتل کریں گے اور قتل کر کے کیا کہیں گے؟ هو يغذب اللباس سنال محمد. تم لوگوں نے ہمارا لباس پہنا, بے یغذب الولایا, اور میرے بھابی کی ولایت کو چھپا دیا. بہت توجہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور میری ولایت کو, میرے بابا کی ولایت کو چھپا دیا, یعنی قتل ہوگا. کس بات پہ؟ ولایت پہ.
پھر کہا جائے گا فدق کے غاصبین کو لایا جائے. توجہ کیجیے گا, یعنی فدق کے غاصبین کو لایا جائے گا, ان کو قتل کیا جائے گا. امام کیا کریں گے؟ عدل. بس یہ عدل سمجھ آ گیا, مجلس تمام ہو جائے گی. کہتے ہیں نا کہ جی عدل ہو رہا ہے. عدل اور انصاف میں فرق ہے. قانون دان بیٹھے ہیں, میری تائید ہوتی ہے. پاکستان میں انصاف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک قتل سزا پھانسی, 100 قتل سزا پھانسی, 1000 قتل, یہ ہے نا, اسے کہتے ہیں انصاف. آپ نے توجہ نہیں کی ہے. عدل کیا ہے؟ انصاف میں ظلم ممکن ہے. توجہ کی, کیونکہ ایسا ہی ہے نا, انصاف میں ظلم ممکن ہے, انصاف میں ظلم ہو سکتا ہے, عدل میں ظلم نہیں ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ میں بیمار ہوں, قبلہ نے میری دعوت کی, ہم 4-5 گئے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا, میں بیمار ہوں اور ہم 4-5 افراد گئے ان کے پاس دعوت کے لیے. انہوں نے سب کے آگے 2-2 روٹیاں رکھ دی اور سب کے آگے 1-1 پلیٹ گوشت کے رکھ دی. یہ تو ہے انصاف. مگر انصاف میں ظلم ہے, کیونکہ میں تو بیمار ہوں. توجہ نہیں کرتے دار محترم, انصاف میں ظلم ہو گیا نا. مگر جب عدل کریں گے تو کیا کریں گے؟ جس کو جو چاہیے. امام زمانہ انصاف کرنے نہیں آئیں گے, ہائے ہائے ہائے, وہ عدل کرنے آئیں گے. یا میرے اللہ توجہ نہیں کر رہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں میرا عدل جزء کیا ہے؟ هو يغذبه في شك مما رتب هو قلب عليا بولايته هو يتسمكا بفضلته. میں اسے 1000 مرتبہ زندگی دوں گا, 1000 مرتبہ قتل کروں گا. کس کو؟ جس نے کسی مولوی کے کہنے پہ علی کی ولایت پہ یقین کیا ہوگا. بہت بڑی بات کی, آپ کو سمجھ گزر گئی. یعنی کہ ولایت علی کسی فتوے کے حاکم اور قاضی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ فتویٰ دے گا تو علی کی ولایت مانوں گا. یہ نہیں ہے کہ فتویٰ نہیں ہے, علماء کی طرف رجوع ہے. کس مسئلے میں ہوگا رجوع؟ جس کا ذکر قرآن میں نہیں. بھائی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے پھر ہم علماء کی طرف رجوع کریں گے. جس کا ذکر قرآن میں ہے, جو نہیں محترم, حسین بن روح نے خط لکھا, مولا اس آیت کی تفسیر کیجئے. حتی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے, باطل چلا نہیں جاتا. حق کے آنے سے باطل مٹ جاتا ہے, رہتا ہی نہیں. معصوم فرماتے ہیں الحق ہوا لیجن, اس حق سے مراد علی, یعنی یہ لیا ہے باطل مٹ گیا. جب علی کے آنے سے باطل مٹ ہی جاتا ہے تو علی کے آنے سے نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ بھائی جب علی آ گیا تو باطل چلا گیا نہیں, مٹ گیا. وہ یفدق الغاصبین, فدق کے غاصبین کو بلاؤ, مولا ان کے ساتھ عدل کریں گے. اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر مولا کہیں گے ہو والانسان وینطق فی الصامتی. گھبرا تو نہیں کسی. اچھا میں یہاں کہوں گا کہ مجھے داد دے, دیکھیں میں نے اتنی دیر ہو گیا آپ سے داد نہیں مانگی, اب مجھے کہیے گا کہ داد دیجیے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں انسان حیوان کی 2 اقسام ہیں, حیوان ناطق اور حیوان صامت. حیوان ناطق کون ہے؟ آپ اور میں. نطق کرنے والے حیوان
ऐसे ही ना कि ये फलसफे की रूप से आप देखें, इल्मुल अदबियात में और इल्मुल रियाजियात में जाए तो हम लोग हैं हैवान नातिक, गोया गुफ्तगू अक्ल रखने वाले हैवान। एक है हैवान सामित जिनमें जानवर हैं, चौपाए हैं, दो पाए हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, आबी और हवाई परिंदे जानवर वगैरह हैं। खत्म हो गई। तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? हैवान नातिक किसे कहते हैं? इंसान को। हैवान सामित किसे कहते हैं? जानवर को। अगर हैवान नातिक यानी इंसान अपनी फितरत पे रहे तो जन्नती, और अगर हैवान सामित अपनी फितरत बदलते तो जन्नती। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा फलसफा है। अगर हैवान सामित यानी कोई सा जानवर अपनी फितरत बदलेगा तो जन्नती है। अगर हैवान नातिक यानी इंसान अपनी फितरत पे रहेगा तो जन्नती है। यानी मैं यूं आपको समझाता चलूं कि अगर हैवान नातिक यानी इंसान अपनी फितरत से हटे तो जानवर से बदतर है, और अगर हैवान सामित यानी जानवर अपनी फितरत पे रहे तो इंसान से अफजल है। हुज्जत की मारिफत हासिल करना दो हैवान हैं, हैवान नातिक, हैवान सामित। नूह ने आवाज दी, कोई है जो मेरी मारिफत हासिल रखता है? सबसे पहले सूवर चलता है। तवज्जो कीजिएगा मोहतरम। तो अल्लाह ने कहा मूसा है सूवर को बुला ले, अपनी कश्ती में बिठा, क्योंकि ये इंसानों से अफजल है, तेरी मारिफत रखता है। ये तेरी मारिफत रखता है। एक कुत्ता आया, का बिठाओ कश्ती में। एक बकरी आती है, का बिठाओ कश्ती में। एक शेर आता है, का बिठाओ कश्ती में। अब शेर और बकरी दोनों साथ हैं। तवज्जो कीजिएगा, शेर अपनी फितरत भूल चुका है कि बकरी मेरा शिकार है, और बकरी इस खौफ से मुबर्रा हो चुकी है कि शेर मेरा शिकारी है। दोनों को यकीन है नूह पे। नूह की कश्ती पे यकीन, और ये हुज्जत है फख्र नूह सफीना। जो इमाम ज़माना हुज्जत है, हुसैन है, क्या है? सफीना नूह है का मसल है उसकी। इसकी कश्ती में आने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है। इसकी कश्ती में अगर कोई कुत्ता आ जाए तो इंसान से अफजल है। सगा चचा उतर जाए तो कुत्ते से भी बदतर है। अब आपको समझ आएगी हजूर। ये है जो दिन में आपसे मेरी बात हो रही थी ना, मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हम्मार। ऐ हबीब, ये जो किताबें उठा के फिरते हैं ये गधे हैं। हाय हाय, यानी इन्होंने किताबें उठा तो रखी हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये किताब मानते हैं, साहिब किताब को नहीं मानते, इसलिए ये गधे हैं, ये जानवर से बदतर है। ना ना क्या कर रहे निज़ार मोहतरम, तवज्जो नहीं कर रहे। मैं हैवान नातिक और हैवान सामित को समझाता चलूं। हैवान नातिक यानी इंसान अपनी फितरत से हट जाए तो जानवर से बदतर, और हैवान सामित अपनी फितरत बदल दे तो इंसान से अफजल। शायद मैंने इन दिनों को बात की हो, मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त, मगर अभी याद आ चुकी है। मैं दोबारा वैसे इस मौजू को मिलाने के लिए, जब रसूल और जनाब हजरत अबू बकर गार में गए, बाहरी कुत्ता है, उस कुत्ते ने अपनी फितरत बदल दी। ना वो भौंका, ना वो चौंका, ना उसने मुखबरी की। वो कुत्ता भौंका नहीं है,
وہ भौंका नहीं है कि दुश्मन को पता न चल जाए कि मेरा सरदार अंदर है। कुत्ता है, ये जानता है कि मेरे मालिक को खतरा ना हो, भौंका ही नहीं, ये नहीं भौंका। ये नहीं भौंका, इंसान ये नहीं भौंका, ये खामोश है, ये खामोश बैठा रहा। मेरी जान कुर्बान हजरत अबू बकर पे वो देख रहे हैं कि ये नहीं भौंका, ये क्यों नहीं भौंका? कुत्ता नहीं भौंका, तवज्जो है या नहीं है? ये कुत्ता भौंका नहीं। उन्होंने देखा कि कबूतरी ने इमरजेंसी में अंडे दे दिए, कीजिएगा, एकदम उसने 2 अंडे भी दे दिए, मकड़ी ने जाला भी बुन दिया। हजरत अबू बकर देख रहे हैं। जब वो लोग चले गए 10 बदस्ता का मेरे आका, हम लोग कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, हम तो सहाबे कैफ के कुत्ते को अपना सरदार मानते हैं। हम तो असहाबे कैफ के कुत्ते को कहते हैं वो हमसे अफजल है, इसलिए कि उसे नबी की मारिफत थी। अब जिसे नबी की मारिफत है उसकी जूती जैसे भी नहीं है। और जो है या नहीं दीदार मोहतरम, आप पूछा या रसूल अल्लाह ये कुत्ता भौंका नहीं, चलो हो सकता है बीमार हो, कबूतरी ने अंडे दे दिए, हो सकता है वक्त हो, ये समझ नहीं आई, मकड़ी ने जाला बुन दिया और तलवार से जाला तोड़ा गया, जाला भी नहीं टूटा। तारीख शिबली नुमानी, तवज्जो है या नहीं है? अहले सुन्नत भाइयों की किताब है। रसूल ने कहा इनको जाने दो, मेरे दोस्त इनको जाने दो, अभी हम दोनों इस मकड़ी से पूछेंगे। जो ही मकड़ी के पास आते हैं रसूल ने कहा या आगे मलाते हो बैतुल अस्कुती, बताओ ये तुम्हारा घर तोड़ा इन्होंने क्यों नहीं, कोशिश की टूटा क्यों नहीं? उसने 10 बदस्ता का या रसूल अल्लाह हो वाला फितरतल मुबल्लिगाते, मैं तो अपनी फितरत से हट गई थी, तुम्हारे इश्क में अनाना अलियन मदहल्ला। इश्क में मुब्तला हो गई, मैं आपके इश्क में मुब्तला, मैंने आपकी मोहब्बत में अपनी फितरत बदली, मेरे दिल ने चाहा कि एक ऐसा जाला बनूं कि जब ये लोग आए तो समझे ये खंडर है, यहाँ कोई नहीं आया, मेरी ज़बान से निकला ना दे अली माज़ुरल्लाह जाए, बस ये निकलना था कि मैंने जाला बुना, ये जाला मैंने नादे अली पढ़ के बुना है। वो मकड़ी कितनी अजीम है कि जानती है नबी का तहफ्फुज़ सिर्फ नादे अली से है। वो मकड़ी है, जानती है कि तहफ्फुज़ रिसालत, तहफ्फुज़ नबूवत सिर्फ नादे अली से है। वो जानती है कि या अली मदद कहेंगे तो मोहम्मद का तहफ्फुज़ होगा, उनसे कदरें अच्छी है। अरे मुमकिन या अली मदद, तवज्जो नहीं कर रहे, अब या अली मदद कहना ये है फितरत। मकड़ी ने अपनी फितरत बदली, तो तवज्जो क्यों नहीं करे दीदार मोहतरम? मकड़ी ने अपनी फितरत बदल, कुत्ते ने, असहाबे कहफ का कुत्ता कतमीर गार के बाहर बैठकर फितरत बदल दी, नजीस है ना कुत्ता,
रोके उसे कोई जन्नत में जाने से? किसी में दम खम है? तवज्जो है या नहीं है? किसी में दम खम है? कोई अपने इल्म के असले पे उस कुत्ते को रोक के दिखाए, अल्लाह उसके साथ कुत्ता कुत्ता ना कर दे। अल्लाह उसका कुत्ता कुत्ता कर देगा कि तू इस कुत्ते को रोकेगा। तेरी जुर्रत कैसे है कि तू इस कुत्ते को रोके? ये कुत्ता इंसानों से अफजल है, क्योंकि नबी की इतनी सी चाहे मार्फत रखता है, रखता तो है। हैवान नातिक किसे कहते हैं? अगर हुज्जत का शक आ गया तो कुत्ते से बदतर। हैवान सामित किसे कहते हैं? कि उसने हुज्जत के लिए अपनी मार्फत और अपनी फितरत बदल दी, और वो इंसान से अफजल। जहां मैंने आना है, मैं जो मेरे मौजू को समझने में जहां आना चाहता हूं। अब आप तो देहातों में रहने, मैं किसी दौर में मैंने बहुत कुत्ते पाले, मैंने आपको बताया भी था पीर साहब को। मैं मौलवी बना तो डर गया कि कोई फतवा ही नहीं आ जाए। वही कुत्ते पालने से तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता है ना। कहते हैं मौत का फरिश्ता आ जाता है। मजबूरी थी, मैंने कुत्ते पालना छोड़ दिए, वगरना मेरे हर जात का कुत्ता पाला भी है, रखा भी है। कुत्तों से मेरा पाला शुरू से रहा। अब आपने भी, आपके घरों में भी ये कश्मीर की वादियां हैं सरसब, खुदा की कसम ये मिस्र जन्नत है। मसल नहीं तो मिस्र जरूर है। आपने अक्सर घरों में जानवर रखे होंगे, एक मालिक होता है, तवज्जो है। अब ये जो हैवान नातिक और हैवान सामित है, इसके मुकाबले में एक लफ्ज है जिसे कहते हैं राई। ये अगर समझ आ गया तो आले मोहम्मद की कसम हुज्जत समझ आने की इमाम ज़माना। ये मेरा चैलेंज है, अगर आपको राई समझ आ गया, रे अलिफ ऐन ये राई, मौला का लक़ब है रायुल खल्क, खल्क का राई। राई किसे कहते हैं? मालिक को, जो जानवर को पालता है। बच्चा मैं क्या करूं ज़िदान मोहतरम, जानी के मैंने एक कुत्ता रखा हुआ था, और उसका नाम भी मैंने डायना रखा था, ठीक है। और वो मेरी ज़बान नहीं समझता था। कुत्ते को मालिक की जबान समझ नहीं आती। भेड़ बकरियां हैं, उनको भी मालिक की गुफ्तगू समझ नहीं आती। गाय है, बैल है, कोई सा भी जानवर है, परिंदा है, मालिक की आवाज उसे समझ नहीं आती। मालिक ने उससे मोहब्बत करने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसके लिए कुछ लफ्ज बनाए होते हैं। मेरे अल्लाह, मेरा सुमुल मजमा हुकुमुल मुजमा, ठीक है ना। जब मेरी डायना दूर चली जाती थी तो मैं क्या कहता था? तो वो दूर से भाग के आती थी। यानी ये कोई लफ्ज नहीं है, तवज्जो है जरा मतलब। मेरी बात ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, पहले इमाम से लेकर 11 इमाम तक कितने कुत्ते पाले? मैंने कब कह दिया कुत्ते? मैं रायुल खल्क की बात कर रहा हूं। मेरी बात गुफ्तगू पूरी तो सुन ले। हम इस वक्त उनकी बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। पूरी बात सुन ले, पूरी सुन लो मेरी। मैंने कब कहा कि कुत्ते पाल? मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब मुझे पता चला मैंने नहीं पाली। पहले छोड़े इस बात तो है नहीं। हमने जानवर पालते हैं, मैं अपने मौजूद से नहीं हटा, मेरी तरफ देखे, कोई बात नहीं, ये होता नहीं। तो हमने जानवर को सिखाने के लिए जी मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि जब हम कोई जानवर पालते हैं तो हम उसकी जबान में बात करते हैं। वो जानवर को इदराक नहीं होता कि मेरे मालिक की आवाज कैसी है, उसकी गुफ्तगू कैसी है, उसका लफ्ज कैसा है। हम उसे समझाने के लिए उसी की जबान में बात करते हैं।
मासूम कहते हैं ना रायुल खल्क, हम इस कायनात के मालिक हैं। जितना एक जानवर और मालिक में फर्क होता है, इतना इंसान और हुज्जत में फर्क होता है। जितना एक कुत्ते में और मालिक में फर्क होता है, इतना एक अली बाकर और इमाम जमाना में फर्क होता है। अगर कुत्ता इतनी नजिश है तो सेवन में बैठे हुए को यह कहना ना पड़ता सगे कुए शेर यल्दाना। किसी से कोई गिला नहीं है, ये तो ज़र्फ के सौदे हैं और आले मोहम्मद की खैरात है जिसका जितना ज़र्फ है। कुरान में कुत्ता लिखा है, कुरान में गधे का तज़किरा बलमबूर का, कुरान में हाथी का तज़किरा, कुरान में ऊंट का तज़किरा है, कुरान में शेर का तज़किरा है। नूह की कश्ती में सुअर बैठे तो कोई एतराज नहीं। नूह की कश्ती में कुत्ता बैठे तो एतराज नहीं है। लाल कलंदर से पूछा क्या मेरे आका मेरे सरदार, जब बोधरा ने पूछा कि आप अली की गली के कुत्ते क्यों हैं? अब कुत्ते का काम तो दरवाजे पे होना है। कहा है बोधरा खबरदार, दरवाजे पे सलमान बैठा है। जो है या नहीं है? भाई बीबी का वास्ता मेरी बात मुझे पढ़ने दे, पीछा बैठ जाए, बैठ जाए भाई, मेरी बात सुनो, ठीक है? सारा बात चुप चुप चुप, तवज्जो है या नहीं? मैं बात को क्लियर करता चलूं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आले मोहम्मद ने कुत्ते पाले। मेरा कहने का मकसद है कि ये आपकी गलती है। आपके कहने पे मैंने इमाम ज़माना पढ़ा है और आप देख लें क्या हो गया। मौला का लक़ब है राई। कहने का मकसद मेरा ये था कि हमें हुज्जत और अपने दरमियान इतना फर्क रखना चाहिए जितना कि जानवर और इंसान में। जानवर कभी सोचता नहीं कि मेरा मालिक क्या खाता है।
जानवर कभी ये नहीं सोचता मेरा मालिक पैदा कैसे हुआ है। जानवर कभी ये सोचता नहीं कि मेरे मालिक की शादी कैसे हुई है। जानवर का काम सिर्फ दो काम है, एक मालिक को याद रखना, उसके दुश्मन से तबर्रा करना। हमें भी आले मोहम्मद की मार्फत हासिल करनी चाहिए, उन्हें अपने जैसा नहीं करना चाहिए। तो जो है नहीं है ज़ाहिर मोहतरम, पर मैं या मिंबर रसूल पे ज़रे की कसम है, अगर मेरी पीर साहब आपको बीबी का वादा खामोश बैठ जाओ ठीक है ना। अब मैं देखिए नहीं मखदूम साहब, बात ये है और आपको सैयदा की कसम है, अगर मैं तो जो बयान कर रहा हूँ ये जिक्र आले मोहम्मद है। हर आलिम का एक अपना एंगल होता है, हर जाकिर का अपना एक तरीका होता है जहां से वो आता है, ठीक है ना। आप मेरी बात को नेगेटिव नहीं ले, पॉजिटिव ले। अगर मेरी वजह से आपको ये परेशानियां दुश्वारियां हैं तो सरकार मैं कल आपको ये आली मदद कह के वापस भी जा सकता हूँ। मैं मजलिस के पैसों पे नहीं पलता, ना आप ये समझिएगा ना मेरे दिल में ये तसव्वुर है। तकरीर करने दें, आप बीच में से उठ के सवाल ना करें प्लीज। तकरीर करने दें, बात खत्म करने दें। सुने, बाद में अगर किसी को कोई बात करनी है तो इनके घर जाकर बात करेंगे। खामोशी से बैठ जाए। बिस्मिल्लाह जी। आप जो है हम अपना बयान वहीं से ही शुरू करेंगे। अब ये जो जानवर होता है ओवर हैवान सामते ही फिल्मल का, और वो जो जानवर है वो बेजबान है, मगर मालिक को मालूम है कि इसे भूख कब लगती है। ये मरीज होता है, इसे दर्द होता है तो इसकी क्या निशानी होती है। आप तवज्जो नहीं कर रहे। हजूर देखे ना, आप घोड़ा पाले, घोड़ा मुंह से तो नहीं बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मालिक उसकी आदत से पहचान लेगा कि इसको क्या चीज है। अच्छा कैसी बात है जो डॉक्टर आता है वो भी नहीं घोड़े से पूछता कि तुम्हें क्या दर्द है, वो उसे वही इंजेक्शन, वही दवाई, वही टैबलेट देगा जिससे घोड़े को सेहत हो जाती है। चाहे मुर्गी हो, कोई जानवर हो, चपाया हो, सिपाया हो, कोई सा भी हो, वो करता है। मालिक उसे कहते हैं जो जानवर की बेजबानी को समझे। आले मोहम्मद जो वहां से यहां आए हैं वो हमारी जबान में गुफ्तगू करते हैं, अपनी जबान में कभी गुफ्तगू की ही नहीं है। उनकी जो अपनी जबान है, तवज्जो नहीं कर रहे, वो हमारी वजह से हमारी तरह का रूप लेके आए हैं। अपना रूप उन्होंने सिर्फ एक मर्तबा दिखाया है। हाँ, मेरा चैलेंज है, उन्होंने एक मर्तबा अपना जुज़ई नाखून के बराबर रूप दिखाया। नूरियों को पूछना पड़ गया खुदा से, या रब्बा वमन तख्त हाजुल किसा। क्या रब्बे चादर के नीचे कौन है? क्या जिब्रील जानता नहीं ये मोहम्मद है? क्या
نہیں یہ حسن ہے، جبریل جانتا نہیں حسین ہے، مگر جب الگ الگ تھے جو نہیں کر رہے کوئی جانتا تھا، جب ایک ہوئے تو تم سے پوچھنا پڑ گیا یہ کون ہے۔ اب جانور کا ایک مالک ہوتا ہے، ایک وارث ہوتا ہے، کیا کروں گی بلا میں کہاں لا کے پھنسا دیا مخدوم صاحب۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک مالک ہوتا ہے، ایک وارث ہوتا ہے۔ مالک کسے کہتے ہیں، وارث کسے کہتے ہیں؟ مالک جو شے، جس شے کا وہ مالک ہوتا ہے، دو طریقوں سے وہ مالک ہوتا ہے، یا وہ خریدے یا کوئی اسے گفٹ کر دے، وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد اس شے کی مالک نہیں ہوگی، وارث ہوگی۔ بھائی سمجھو نہیں کہ جناب محترم، یہ دین کی مالکہ کا نام ہے بطول، توجہ نہیں کرتے جناب محترم۔ اور وارث کون ہے؟ السلام علیکم یا وارث الانبیاء، امام زمانہ کے لیے السلام علیکم یا وارث القرآن۔ امام زمانہ اس دنیا کے وارث ہیں، ہم ان کی وراثت ہیں، وراثت کو وارث کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، وراثت کو وارث کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، وراثت پہ یقین، وارث پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ میرا وارث ہے۔ بابا وارث قائم ہوگا تو وراثت کی عزت ہے، وگرنہ کھنڈرات بن جاتے ہیں۔ وارث ہوگا تو اپنے وارث کی خیر مانا کر، اپنے وارث کے دیدار کو ترسا کر، اپنے وارث کی تحقیق نہیں کریں اور اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں جانور ہی سمجھیں۔ بات وہی ہے، ہم ان کے مقابلے میں جانور ہی ہیں۔ جب وہ آئیں گے، اگر ہم انسان ہوتے تو وہ نہ آتے، ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے ہم جانور ہیں۔ توجہ نہیں کرتے محترم، وہ ہم جانوروں کو انسان بنانے آئیں گے۔ اگر یہ دین مکمل ہوتا تو حجت کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب دو ہے، مولا فرماتے دین مکمل ہے مگر اس دین میں تحریف کر دی گئی ہے، حجت دوبارہ وہ دین نافذ کرنے آئے گی، اور چاہے کسی کو برا لگے، حجت نے تو دین نافذ کرنا ہے، زبردستی کریں گے۔ قبلہ توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال بہت وقت لے لیا آپ کا، انشاءاللہ یہیں سے کل سے بیان شروع کریں گے۔ بہرحال یہ ساری کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ بچہ خدا رہا، انسان اگر حجت کی معرفت حاصل نہ کرے تو جانور سے بدتر، جانور حجت کی معرفت حاصل کر لے تو پھر اس گھوڑے کو قیامت تک چوما بھی جاتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، نہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچی، مگر اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ جہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا یہ جو گدھوں کی مثل ہے، وہاں قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے بلا دیا تجربہ، یہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اس گھوڑے نے کچھ تو کیا ہے کہ انسان کو گدھا بنا رہا ہے، اور توحید گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے۔ گھوڑے کی ہی نہیں، اس کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، یہ بھی نہیں اس کے نتنوں سے نکلنے والے پسینے کی قسم۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات، اللہ کو اپنی حجت کتنی عزیز ہے کہ جو اپنا آپ حجت کے حوالے کر دے اللہ اس نجاست کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ نتنوں سے نکلنے والا پانی نجیس ہے،
अल्लाह उसकी कसम खाता है, कुत्ते की कसम खाता है। तो वो करबला में हजारों की तादाद में इंसान है हुसैन को कत्ल करने वाले, और एक घोड़ा है जो हुसैन के हिस्से के तीर खा रहा है। अल्लाह आगे लोगों में अल्लाह कोई गम ना दे, गम के सिवा मैं शहादत हुसैन नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये मुर्तजिज हुसैन के पास कैसे पहुंचा। आखिर मुर्तजिज कहीं से तो आया ही होगा ना, मगर ततीमा तक रोने आए हो तो सिर्फ दो जुमले मसाइब के हैं। दिल गोश का रखते हो, जिस दिल में करबला है मौला उसे करबला की ज़ियारत करवाए, जिस दिल में नहीं है तौफीक गिरिया बीबी से मांगा कर। मासूम फरमाते हैं सलाम है उस हुज्जत। इमाम हुसैन काज़िम जिंदान में बैठे, मखदूम साहब ये कुरान है, मुझे इसकी कसम है, समझे नहीं है लोग। हुज्जत यूं है, कोई यूं नहीं है, वो तो यूं है अभी भी, चाहे वो मोहम्मद किसी रूप में हो। इमाम हुसैन काज़िम जिंदान में फरमाते हैं कि सुनो, जब कोई मुर्तजिज का मसाइल पड़े ना, इस तरह रोया करो जिस तरह तुम अपनी माँ के जनाजे पर रोते हो। अल्लाह कोई गम ना दे, गम के सिवा इस मुर्तजिज ने आना है अभी हुज्जत के साथ, तीनों में छलनी होकर, मगर मुख्तसर दो जुमले मसाइल के हैं। मोहम्मद ने अली को बुलाया, अली भाई करीब आना की मौला का घर नाता नामी जागीर है, वहां जाओ, वहां पे एक बादशाह है जिसका नाम शाह खल्द है, उसे मुसलमान करो। इस वजह से एक वजह है, वो आपको बता के इजाजत है। मौला गरनाता नामी जागीर में गए, शाह खल्द को पता चला, उसने मौला के चेहरे को देख के शिकस्त तस्लीम कर ली। मौला को 3 दिन मेहमान रखा। चौथे दिन शाह खल्द ने कहा मौला मेरे एक घोड़ों का अस्तमल है, मेरा दिल चाहता है आपको उसका मैं दीदार करवाऊं। मौला चले साथ, क्या देखा कि एक घोड़ी है जिसका नाम मुजल्ली है, वो सूरज की तरफ देख रही है और रो रही है। अल्लाह जिनके दिल पत्थर के हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं, सादा तो मेरे सादा। मौला आपके आंसू कबूल करे, हो गई इबादत, बस आपके आंखों से 2 आंसू निकलेंगे इबादत हो जाएगी। और मौला शाह खल्द ने कहा मौला ये घोड़ी है, इसका नाम मुजल्ली है, आज तक कोई इस पे बैठा नहीं और आज तक मुझे इसकी माँ और बाप का भी पता नहीं। अल्लाह जाने ये कहां से आई है। इसका एक बच्चा है 6 महीने का, वो दूर बैठा है, वो कभी छाव में नहीं बैठता। मैंने उसका नाम मुर्तजिज रखा है। जब मैं पानी देता हूं तो रोता है, जब मैं उसे खाना देता हूं तो रोता है। मौला ने उससे कोई बात नहीं की, वापिस अपने कमरे में आ गए। शायद खल्द इजाजत तो हम जाना चाहते हैं। चलने लगे, का मौला मुजल्ली साथ ले जाइए। 8 आदमियों ने दाएं जानिब से पकड़ा, 8 आदमियों ने बाएं जानिब से। कहा मौला इस पर अभी तक किसी ने सवारी नहीं की। मुजल्ली को लाया गया, मुजल्ली ने इनकार नहीं किया, कदमों पे सर। अल्लाह जाने अपनी जबान में कुछ कहा। मौला ने कहा है शाह फजल का जी मौला। कहा वो मुर्तजिज भी मेरे साथ भेज दे। कहा मौला उसको ले जाने का फायदा नहीं, बीमार है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, धूप पे बैठा रहता है, छांव से अल्लाह जाने उसे क्यों नफरत है। जिसके दिल पत्थर के हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं। मसाइब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अदादारों मुजल्ली मुर्तजिज को लेकर मदीना में पहुंचे। रसूल ने कभी भी अली का ऐसे इस्तकबाल नहीं किया जैसे आज इस्तकबाल किया। नारायण उतार दी, गिरेबान चाक, अली को गले से नहीं लगाया। रसूल दौड़ते हैं, मुर्तजिज के गले में बाहें डाल के कहा आज के बाद मेरा हुसैन तेरे हवाले। अल्लाह कोई गम ना दे, गम के सिवा ऐ मुर्तजिज आज के बाद मेरा हुसैन तेरे हवाले है। अदादारों दोनों माँ बेटों को मौला ने अपने अस्तबल में बांध दिया। उधर दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब ने खाना तैयार किया। एक लुकमा हसन के मुंह में देती है, एक लुकमा हुसैन के मुंह में देती है, जिनके दिल पत्थर के हैं। सादात गैर सादात में उनसे मुखातिब नहीं हूं। एक लुकमा हसन के मुंह में, एक लुकमा हुसैन के मुंह में। और सैयदा ज़ैनब बात क्या करती है, मेरे भाइयों सुना है बाबा को घोड़ी लाए हैं जिसका नाम मुजल्ली है। सुना है उस पर किसी ने सवारी नहीं की, बाबा अली ने सवारी की है, मगर हाँ उसका एक बच्चा है जिसका नाम मुर्तजिद है। वो धूप में बैठा रहता है, कुछ खाता नहीं है। अब ये जुमला कहना था, लुकमा दिया हुसैन ने अदब से हाथ पकड़ के नीचे किया। जूता नहीं पहना, दौड़ता है तुम्हारा गरीब हुसैन। और अस्तबल के सामने मुर्तजिद को देख के कहता है आज से खाना पीना छोड़ दिया,
اے مرتجز ابھی تو کربلا بڑی دور ہے، علامہ علامہ نجم بلّہ ہو گئی بات جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مقادم نہیں ہو گئی بات پر تو بسائب کی جڑے ہو ہیں. سمیدہ نے حسین نے ضد کی، نانا کہا جی میرے حسین، کہا میں مرتجز پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. کہا حسین میری زندگی، حسین میری زندگی میں سوار ہوں گے. علی ذرا حسین کو سمجھاؤ میری زندگی میں نہ بیٹھے. حسین نے کہا نا 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 میں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ نے حسین ایک طرف سے علی نے تھاما، لگام ایک طرف سے محمد. حسین سوار ہوتے ہوئے نیچے اتر گئے. نانا میں اکیلا سوار ہوں گا، میں کیا کروں آپ لوگوں کا، بابا میں اکیلا سوار ہوں گا. اللہ سلمان فارسی تک بدلتا کہتے بولا میں سوار کرواؤں کا نا سلمان، آج سوار ہونے کی عادت پڑ گئی. اللہ جانے کربلا میں کوئی ہو یا نہ ہو، آج لوگ ملم نہ دے اس رب کے سوا. اللہ حسین گھوڑے پہ پہلی مرتبہ سوار ہوئے، بظاہر ادھر بطول کو پتہ چل گیا. اے فضا کا جی آقا دادی کہ سلمان کو حسین کو کہے کہ گھوڑا میرے صحن میں لے کے آ. اللہ رسول جناب کو صحن میں لایا گیا. سیدہ نے چادر تطہیر کو، میں کیا کروں میرا دل پتھر کا نہیں ہے، میں کیا کروں جن کے دل رونے آئے ہیں بس جو جملہ سن لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے حسین چادر تطہیر اتاری، اس میں دانے ڈالنے کے بعد مرتجز کو کھلایا. مرتجز نے جب کھا لیا نا کہا مرتجز تو زہرا کا مغرور ہے، جب میرے حسین کو سب چھوڑ کے چلے گا تم نے چھوڑ کر نہیں ڈالا.